This is Engineering Mechanics RTU paper 2019. 2019 का RTU का पेपर चल रहा है अपना. दो क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल बचे हैं इसमें. We have covered the rest of the numericals. Now this is the numerical that we are going to do. Question number 6. See, a thread has been connected to the roof. This thread is coming down, covering a pulley, and the pulley itself has mass m. This is not a massless pulley. Generally, when we get problems on pulleys, it is a general statement given that the pulleys are massless and the ropes and the pulley arrangements are frictionless. So regarding friction, there is nothing given here. So we will assume this whole arrangement to be frictionless. But the pulley has got a mass. This one has got a mass. This is massless. ये जो छोटी पुली है ये massless है, क्योंकि इसके बारे में अपन को कुछ कहा नहीं गया है, तो अपन इसको massless frictionless दोनों मान लेंगे. लेकिन इस वाली पुली का मास m दिया है. The rope then comes over this small pulley, and then it is getting connected to another mass also exactly same m. इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, दोनों का. This is a simple weight. This is a weight in the shape of a disc. So this will rotate also. And now they want us to do two things. Find the velocity v of the falling block A. So the simple weight is called A and the disc weight is called B. And they want you to find an expression for velocity v of falling block A as a function of y. There is a small error in display here, so you should read this as y. This is y. This is a highly conceptual question, and very, very important concepts of engineering mechanics are going to be cleared for you, even in this question. Okay? Now see. No other data is given. The only parameters that you can use are the acceleration due to gravity, which even if it is not given, you can use it as g. The mass m of the disc and also that of the simple weight. Both have mass small m. And the parameter, general parameter y. यानी कि आप ये कहोगे कि भाई ये assume करो कि ये वाला मास कुछ डिस्टेंस से नीचे गया, तो वो जो कुछ है उसको y मानोगे आप. That is the only parameter allowed for you. ठीक है, और कोई पैरामीटर आपके पास में है नहीं. So only in terms of these parameters your answer should be written. इस तरह की क्वेश्चंस अपन ने पहले भी की है. आपको क्वेश्चन में कौन कौन से पैरामीटर्स दे रखे हैं, सिर्फ उनके टर्म्स में आंसर निकालना होता है. ठीक है. नाउ व्हाट कैन वी डू? इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? इसमें कहीं कोई मेंशन नहीं है ये काइनेटिक्स है, काइनेमैटिक्स है, डायनामिक्स है, क्या है, नथिंग इज गिवन. बस पुली है, रोप है, रोप में टेंशंस होंगी, वो सब आप देख लो. मास दे रखा है और तीन पैरामीटर आपको गिवन है. y के टर्म्स में तो आपको वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ब्लॉक ए निकालनी है, और ये भी बोल दिया है द ब्लॉक इज गोइंग टू फॉल. सो we assume that velocity of a block is downwards, and obviously when this is going to fall downwards, the thread will be pulled, this disc will roll, and the center of gravity of this disc will climb up, or rather this disc will rotate and simultaneously it will climb upwards. So if this block is called b, then I can say that velocity b, which is the velocity of the center of gravity of the disc, will be in the upward direction. तो अब खूब सारे अननोन है, अपन को ये निकालना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए as a function of
वाई। ये आंसर निकालना है अपने को। सर ठीक है, हाँ एक सेकेंड। सर हाँ अब बोलो। सर इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल, इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हो, और सिंपल काइनेटिक्स की जो आपकी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है वो भी लगा सकते हो। तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये बेसिकली काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जिसमें कि फोर्सेस और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीजें एक साथ यूज में आती है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, लेट अस फाइंड अ वे टू सॉल्व दिस। तो मैं पहले आपको एक सिंपल प्रिंसिपल से सॉल्व करके दिखाता हूँ। वर्क एनर्जी अगर आप लगाओगे, आप लगा के वर्क एनर्जी लगा के ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको पहले सिंपल वाला अप्रोच बताता हूँ, विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां पर आपके लिए फायदेमंद है ये बताता हूँ पहले। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप तब लगाइए जब जनरली ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंडर में कोई चीजें गिर रही हो या उठ रही हो, ठीक है। दूसरा, उसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन की कोई चीजें नहीं हो, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना सबसे ज्यादा सिंपल होता है। एंड सिंस इन दिस केस there are no frictional forces involved, only masses are falling down and moving upwards and downwards, only such type of motion is there। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आप ये मेरी तरफ से एक हिंट के तौर पे समझ लो कि कभी भी ऐसे सिस्टम्स आते हैं तो उसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाओगे तो ज्यादा लंबा और मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, दैट विल बी मच इजियर फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट योर इक्वेशंस। तो अब मैं दिखाता हूं कि ये सुनने में देखने में जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, ये कितनी सिंपल हो जाएगी प्रॉब्लम अगर मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं। सो लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आप लगाते हो, सो यू हैव टू कंसिडर टू स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो अब चूंकि ये इनिशियल और फाइनल प्रॉब्लम में तो दे नहीं रखी इन्होंने, तो ये भी आपको ही बनानी पड़ेगी कि कौन से स्टेट को आप इनिशियल मान रहे हो, कौन से स्टेट को फाइनल मान रहे हो। बट द गुड थिंग इज, since this is a universal principle and it can be applied at any instance of the motion of the system, यानी कि ये सिस्टम जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में हो उस कॉन्फ़िगरेशन पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहा हूं, देखो मैं सीधे बोल रहा हूं, प्लीज नोट इट केयरफुली। आई एम सेइंग आई एम यूजिंग माय कन्वीनियंस हियर। तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है कि कौन से स्टेट को आप इनिशियल मानो, कौन से को फाइनल मानो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले सिस्टम को ऐसे ले लेता हूं। आई एम टेकिंग अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम लाइक दिस। पहले तो यहाँ पर डिस्क बना दी, और उसके बाद ये जो वेट है, इस वेट को इस डिस्क के बराबर ही रख दिया। एम, दिस इज ऑल्सो एम। I draw a datum line here, and obviously there is a massless pulley here also। ठीक है, और इसको मैंने बोला दिस लाइन इज माय डेटम। डेटम लाइन की क्या खासियत होती है, कैन एनीबॉडी टेल मी? सर डेटम लाइन से ऊपर की तरफ जो होता है उसमें पॉजिटिव लेते हैं, एक पर नीचे सेकंड, की मेरा तरफ लेते हैं। वापस से मेरे को स्पीकर लगाना पड़ेगा। हाँ बताओ। सर डेटम लाइन के ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं अपन। और क्या चीज लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या मास। चीज है? डेटम लाइन के ऊपर कौन सी पैरामीटर पॉजिटिव या नेगेटिव कह रहे हो आप? वर्क। वर्क नहीं, एनर्जी। ठीक है, हाँ सर। वर्क का डायरेक्शन डेटम से ऊपर और नीचे नहीं चेक किया जाता, वर्क का डायरेक्शन इससे चेक किया जाता है
कि आपकी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है या नहीं, उससे वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। डेटम लाइन से वर्क का कोई रिलेशन नहीं है। डेटम लाइन से एनर्जी में भी सिर्फ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी का ही नाता रिश्ता है, इवन सारी एनर्जीज का भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ राइजिंग ऑब्जेक्ट आर बोथ पॉजिटिव। तो काइनेटिक एनर्जी का भी डेटम से कोई लेना देना नहीं है। स्प्रिंग एनर्जी का भी डेटम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है या एक्सपैंड हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ये इस पर डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग की एनर्जी, if you are talking about the work done on the spring or are you talking about work done by the spring, तो उन चीजों पर डिपेंड करेगा स्प्रिंग की एनर्जी को प्लस ले रहा हूं कि माइनस ले रहा हूं। डेटम लाइन अब ध्यान से आप याद रखिए, concerns only and only with gravitational potential energy. So gravitational potential energies of objects which are above the datum line are positive, and gravitational potential energies of all the objects having masses below the datum line are negative. ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही है डेटम। ठीक है, ये याद रखना। अब अपन आगे चलें। मैं डेटम लाइन इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि अब मेरे को पता है कि भाई इसमें ब्लॉक वाला मास तो नीचे को उतरेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी, और डिस्क वाला मास रोल होते हुए ऊपर को चढ़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब मोशन आएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जीज आ जाएगी। स्प्रिंग है नहीं तो स्प्रिंग की एनर्जी है नहीं, तो अपन को अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाएं, then we only need to be concerned about the potential energy of gravitation and kinetic energy of motion, that's all. तो आपके धागे में क्या टेंशन चल रही है, कितना वर्क हो रहा है, कुछ नहीं निकालना आपको। सो दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल इफ यू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब देखें इसमें कैसे लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी says that the total energy of the system in initial state will be equal to total energy of the system in its final state. And now, since in this system the total energy comprises only of gravitational potential and kinetic energies, ठीक है, तो ये तो मैंने एक स्टेट इनिशियल ले ली। so what I have shown in figure is the initial state. फाइनल स्टेट अगर बनाना चाहूं तो मैं एक ऐसी स्टेट बनाऊंगा, अब देखो ये क्या हुआ। डेटम लाइन से ब्लॉक तो आ गया लेट अस से y डिस्टेंस नीचे। नाउ यू इंट्रोड्यूस योर पैरामीटर y। ठीक है, अब यहां पर y इंट्रोड्यूस करोगे। अब ये फाइनल स्टेट है, हालांकि फाइनल स्टेट का मतलब ये कोई जमीन पे बैठा नहीं है अभी आकर के, बोथ द masses आर इन मोशन, लेकिन आपने एक इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले ली कि अज्यूम करो कि डेटम लाइन से y डिस्टेंस नीचे आपका मास पहुंच गया है। तो अब ये मेरे को बताओ पहले तो, ये डिस्क जो है ये कितना ऊपर गया होगा। सर ये भी वाई डिस्टेंस ही ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। एक सेकेंड, हाँ, सर ये भी वाई डिस्टेंस ही ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों का मास सेम है। नो नो नो, बिल्कुल गलत। कोई तो और फिर इस पे, कोई और है क्या जो सुन रहा है? इज एनीबडी एल्स पेइंग अटेंशन? अक्षित तो कह रहा है कि वाई डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता है। सर इसका वाई बाई मतलब टू। है वाई बाई टू से ऊपर जाएगा। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये अपन ने प्रॉब्लम पहले भी इस तरह की सॉल्व की हुई है। whenever there is a pulley which is covered like this, और आप यहां से अगर y डिस्टेंस तक धागा खींचते हैं तो ये वाली पुल्ली का सेंटर जो है ये कितना ऊपर जाता है? ये y बाई टू ऊपर जाता है, y ऊपर नहीं जाता। ठीक है, इसका रीजन क्या है? ऐसे रटो मत, इसका रीजन भी एक बार माइंड में समझ लो। हालांकि रटना तो है ही आपको, यू हैव टू रिमेम्बर
कि इस तरह के सिस्टम्स में डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशनशिप है, लेकिन इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ से वाई धागा खींचा और आपको ये नहीं पता कि ये y/2 से ऊपर गया, आप इसको x मानो, ठीक है। तो x, ये सेंटर अगर x ऊपर गया तो इसका मतलब है, ये देखो ये डिस्क की नई पोजीशन बना रहा हूँ और ये डिस्क का नया सेंटर है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटर टू सेंटर जो चेंज आया है डिस्टेंस में, यही x है। अब देखो इसके डिस्क के ऊपर जाने से आपका यहां से लेकर के यहां तक का, ये देखो ये धागा खाली हो गया और ये धागा खाली हो गया, तो इसका मतलब है कि y मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, सो x बिकम्स इक्वल टू y/2। इस तरीके से समझ में आ गया ये रीजन तो आपको स्कूल टाइम में ही पढ़ा देना चाहिए था। आपने कहीं पे कोचिंग की होगी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत कॉमनली सिखा देते हैं। इस तरह के पुली अरेंजमेंट में बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द पुली इज ओनली हाफ ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रोप दैट यू आर पुलिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। बाय अमाउंट ऑफ रोप को आप सिस्टम से खींचते हो तो सेंटर ऑफ पुली y/2 से ऊपर जाती है, y से ऊपर नहीं जाती, ठीक है। एनीवे, सर ये समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, मैं थोड़ा फिगर अच्छा बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो डिस्क आपका x डिस्टेंस से ऊपर चला गया, ठीक है। पहले डिस्क का सेंटर यहाँ था, अब डिस्क यहाँ आ गया। यहाँ से जब आपने y अमाउंट खींच लिया था, अब ये आपको पता करना है कि ये डिस्क कितना ऊपर गया, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं कि y जो धागा खींचा है उससे पहले जो डिस्क के बॉटम में कॉन्टैक्ट रोप का यहाँ बन रहा था, अब डिस्क के बॉटम में रोप का कॉन्टैक्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतनी रोप खिंच गई ऊपर। ये जो लाल हाईलाइट कर रहा हूं, इतनी रोप आपने बाहर खींच ली, ये मानते हो अक्षत? यस सर। ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ डिस्क x डिस्टेंस से गया है तो सीधी सी बात है कि बॉटम ऑफ डिस्क भी x डिस्टेंस से ही ऊपर गया होगा, हाँ सर। ठीक है। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस x है, मैं इस धागे को दो टुकड़े में काट देता हूँ। दिस वन इज पार्ट वन, दिस वन इज पार्ट टू, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू चूंकि सिमेट्रिकल है तो पार्ट वन और पार्ट टू की लेंथ तो सेम होगी, यस सर। ठीक है। और ये वर्टिकल डिस्टेंस x है, और ये कर्वेचर अगर मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूं तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये भी x हो गई और ये डिस्टेंस है ये भी x हो गई, ठीक है। तो मैंने टोटल धागा जो y खींचा है ये 2x के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो x कितना है? x का मतलब अब आप x को ऐसे समझो विच इज द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द प्रीवियस पोजीशन ऑफ डिस्क एंड न्यू पोजीशन ऑफ डिस्क, तो x कितना हो गया? y/2। यस सर। क्लियर हो गया ना? हाँ। चलो अब अपन आगे चलते हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें याद रखने के लिए मत बैठना एग्जाम के टाइम पे। डू नॉट इंडल्ज योरसेल्फ इन ऑल दिस कॉन्सेप्चुअल स्टफ। एग्जाम के टाइम पे तो ये सिस्टम, इस तरह का सिस्टम कहीं भी दिख जाए तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि भाई ये वाला जो पार्ट है ये अगर वाई डिस्टेंस से नीचे आता है तो ये डिस्क का सेंटर जो है y/2 से ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब अपने पास ये चीज आ गई है। दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में आपने अपनी कन्वीनियंस से दोनों को एक ही लेवल पर मान लिया था, ठीक है। और फाइनल पोजीशन में अब सीधी सी बात है, आप इसको एक पैरामीटर ले आओ कि सपोज करो कि y डिस्टेंस से ये नीचे गिर चुका है एंड व्हाइल इट इज फॉलिंग, नाउ इट इज इन मोशन। इनिशियल पोजीशन में मोशन नहीं थी, आपने इन दोनों मासेस को पकड़ के रखा था, तो वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी ऑफ b in the initial position was 0 and velocity of a in the initial position also was 0. But now the masses are in motion. So there is some velocity of block A and there is some velocity of block B. दोनों की velocity है अब। तो अब आपने क्या देखा?
अब आपके पास में ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन नाउ. Potential energy of gravitation in initial state plus kinetic energy in initial state, ये दोनों टोटल एनर्जी को कंस्टिट्यूट करेंगे इनिशियल स्टेट में. दिस मस्ट बी फाउंड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन इन द फाइनल स्टेट plus kinetic energy of the system in the final state. This is the statement of conservation of energy. ठीक है. अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपने इक्वेशन बना ली है. अब मेरे को एक एक चीज आप बोलते जाओ. एक सेकेंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? mgy/2. Potential energy of gravitation of the entire system in the initial state. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन ब्लॉक की, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन डिस्क, दोनों को ऐड करना है. कितना है इनिशियल स्टेट? दोनों को सर डेटम पे लिया ना अपन ने. mgy/2 प्लस में और फिर माइनस mgy. अरे इनिशियल स्टेट में बताओ भाई. इनिशियल स्टेट ये आई है ना सफिक्स. हाँ तो इनिशियल सर स्टेट का प्लस मतलब, इनिशियल स्टेट का मतलब ये फिगर, ये वाला फिगर. और फाइनल स्टेट मतलब ये वाला फिगर. mgy. कितना होगा बताओ इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन ऑफ सिस्टम? बताओ. mgy सर. भाई वाई है ही नहीं इनिशियल स्टेट में. इनिशियल स्टेट में दोनों मासेस डेटम पे है ना, हाँ. तो जीरो हो गया ना. यस सर. डेटम से ऊपर है तब पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे है तो नेगेटिव पोटेंशियल, और अगर डेटम पर है तो जीरो है कि नहीं. यस सर. So potential energy of gravitation of the disk is zero because it is at the datum. Potential energy of gravitation of block is also zero because that is also at the datum. So we conclude that potential energy of gravitation of the entire system in the initial state is zero. Now what is your opinion about kinetic energy? Kinetic energy of the entire system in initial state. सर ये भी जीरो होगी. ये भी जीरो होगी क्योंकि आपका डिस्क रोल नहीं हो रहा. आपने दोनों को पकड़ के रखा है डेटम में, इनिशियल स्टेट में. तो यू सिंपली पुट द एंटायर काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल स्टेट इक्वल टू जीरो. तो जीरो प्लस जीरो, लेफ्ट हैंड साइड हो गई पूरी जीरो, इक्वल टू. अब आओ इस वाले फिगर पे. नाउ कम टू दिस फिगर. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ डिस्क? डिस्क के पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी कितनी है? प्लस mgy/2. Yes, this is mg by 2. ठीक है. अब और पूरा सिस्टम के लिए अब ब्लॉक की भी एनर्जी चाहिए. इस ब्लॉक की एनर्जी कितनी है? माइनस mgy. माइनस एम जी बाय, क्योंकि ये डेटम लाइन से बाय नीचे है. ओके, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जीज पे. ठीक है. नाउ सी, ये जो ब्लॉक है ये तो वर्टिकली सीधे नीचे को आ रहा है. सो इट हैज वेलोसिटी va. ठीक है. बट हाउ इज द डिस्क गोइंग टू मूव अपवर्ड्स? क्या ये धागा इस पे स्लाइड हो रहा है या धागे के साथ ये रोल होता हुआ ऊपर जा रहा है? सर ये रोल होती हुई जाएगी. सर ये रोल होता हुआ ऊपर जाएगा. रोल होता हुआ ऊपर जा रहा है. तो फिर अब इसमें एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है. तो देयर इज एन ओमेगा ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क अपार्ट फ्रॉम द लीनियर मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्क. यानी कि सेंटर ऑफ डिस्क तो वर्टिकली ऊपर को जा रही है, लेकिन उसके जाने के साथ साथ डिस्क खुद रोल या रोटेट भी हो रही है अपने सेंटर के अबाउट. So the kinetic energy of the disk will have two components, the linear kinetic energy component and the rotary kinetic energy component. ठीक है. तो अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं.
पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों की अपन ने ले ली है, दोनों ब्लॉक और डिस्क की। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बता दो पहले मेरे को। हाउ विल यू एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हिच इज मूविंग डाउनवर्ड्स? हाफ एम वी ए स्क्वायर। प्लस लोगे या माइनस लोगे? प्लस ही लेंगे सर। प्लस ही लेंगे। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये मैंने पहले भी बताया, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, चाहे राइट साइड को जा रहा हो, चाहे लेफ्ट को जा रहा हो, इट इज नेवर नेगेटिव। सो इट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क पे। काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया दो कंपोनेंट है, एक तो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मूविंग अपवर्ड्स। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क ड्यू टू लीनियर मोशन? हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये तो सीधे से ले लो, हाफ एम वी बी स्क्वायर। दोनों का मास एम है, ब्लॉक का और डिस्क का, तो इसलिए अपन को एम ए एम बी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे एम ले लो। नाउ हाउ विल यू राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन पे चलते हैं, अब अपन को फिगर की जरूरत नहीं। नाउ आपके इस इक्वेशन में y भी आ गई, वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एम जी वाई बाई टू प्लस माइनस एम जी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी वाई बाई टू। ठीक है, माइनस को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो आई विल गेट एम जी वाई बाई टू इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम बी बी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, अब इसमें ये जो जो अननोन पैरामीटर्स है ना, ये सारे अपन को गायब करने पड़ेंगे। अपन को क्या चाहिए था? लेट अस फोकस ऑन व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ अस। वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग ब्लॉक ए, यानी कि V1 का रिलेशन फंक्शन ऑफ y के तौर पे निकालना है, और ये पैरामीटर्स आपके लिए यूज करना अलाउड है। ठीक है, बाकी और कोई पैरामीटर ले ही नहीं सकते। अब देखो आपके पास कौन कौन से पैरामीटर आप यूज कर रहे हो इसमें, इस इक्वेशन में। स्मॉल m यूज कर सकते हो, स्मॉल g यूज कर सकते हो, स्मॉल y यूज कर सकते हो। Va तो निकालना है, तो Vb को एलिमिनेट करना है, I को एलिमिनेट करना है, ओमेगा को एलिमिनेट करना है। ये सारी चीजें अपन को गायब करनी है, क्योंकि ये सब आपके एक्चुअल प्रॉब्लम में डिफाइंड ही नहीं है, आपने लिए। चलो देखते हैं एक एक करके। I को कैसे रिप्लेस करूं ये बताओ। हाउ शुड आई रिप्लेस I? सर एम आर स्क्वायर। ओके, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय, है ना? यस सर। इसको रिप्लेस कर दिया एम आर स्क्वायर बाय टू। तो यस अब सर इसमें एक प्रॉब्लम और है, आर जो पैरामीटर है ये दे रखा है क्या प्रॉब्लम में? नो आर सर। आपने रेडियस माना है, लेकिन रेडियस तो दिया ही नहीं है। बट यस डोंट सर। वरी, अभी तो फिलहाल ले लो, कम से कम एक आई को हटा करके एम तो आ गया। ठीक है, सो जस्ट टेम्पोरली टेक इट। अब देखते हैं वी बी के बारे में क्या कहना है। वी बी को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? आई विल टेल यू अ ट्रिक। सर सर ये वी बी वी ए के इक्वल नहीं होगी क्या, क्योंकि सेम ही तो वेलोसिटी दोनों की। नहीं, बताता हूँ। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के लिए अगर आपको कभी भी रिलेशन निकालने की जरूरत पड़े, तो ये देखो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ये है ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक ए। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो एक फिक्स्ड लोकेशन ले लो, जैसे कि ये जो ऊपर की सीलिंग है ये एक फिक्स्ड लोकेशन है। फिक्स्ड लोकेशन से आप ब्लॉक बी की जो करंट लोकेशन है उसको बाय बी मार्क कर लो, और उसी तरीके से सीलिंग से अभी जो ब्लॉक ए की करंट लोकेशन है उसको बाय ए मार्क। ठीक है,
अब अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो इसको मैं सी मार्क कर लेता हूं। ठीक है, अब मेरी रिलेशनशिप देखो कैसे है। टोटल लेंथ ऑफ द रोप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस आ गई, मैं इसको कवर करके दिखाता हूँ। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रोप यहां से लेके यहां तक नापूंगा, तो ये हो गया बाई बी प्लस ये जो हिस्सा है रोप का जो डिस्क के नीचे रहता है, ये हमेशा रहेगा, ये डिस्क ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो आई विल राइट इट एज अनदर कांस्टेंट C2। ठीक है, तो वाई बी डिस्टेंस मैंने ले ली रोप की प्लस C2। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इसको देखता हूं। वाई ए माइनस C1 का डबल करूं तो क्या मेरे को ये रोप की लेंथ पूरी मिल रही है? ये यहां से लेकर के यहां तक के रोप की लेंथ को मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वाई ए माइनस C1 का डबल। बताओ सही है क्या? सर सही तो है, लेकिन वो उसके ऊपर का पार्ट रह गया ना। उसको इग्नोर कर सकते हो आप चाहो उसको भी चाहो तो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन सारे कांस्टेंट बनेंगे। ये ऊपर का पार्ट आप बोल रहे हो ना, इस वाले हाँ ऊपर के पार्ट को चलो, अब अगर आपको बिल्कुल तसल्ली करनी है तो चलो इसको C3 मान लो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा और करेक्शन करूँ, आपने बोला कि भाई ये ऊपर वाला पार्ट है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया वाई ए और ये पार्ट हो गया आपका C1 माइनस C3 को वाई में से माइनस करो और इसको डबल कर दो। अब तसल्ली हो गई। यस सर। और चूंकि C1 माइनस C3, चलो इसको ऐसे रहने दो। तो अब ये हो गया, अब टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी हो गई, बाई बी प्लस C2 प्लस बचा हुआ रोप यानी कि प्लस ट्वाइस ऑफ वाई ए माइनस ट्वाइस ऑफ C1 माइनस C3। सही है, ये देख लो। ठीक है क्या, टोटल लेंथ ऑफ रोप। यस सर। नाउ डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टोटल लेंथ ऑफ रोप कांस्टेंट है, तो dl बाई dt जीरो हो जाएगा। dy बाई डी बाई बी बाई डी टी कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी कांस्टेंट आया, उसका डिफरेंशिएशन जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, और इसके आगे की ये पूरी चीज कांस्टेंट है तो माइनस जीरो। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, जीरो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। तो आप सिंपल लेंथ ऑफ रोप को लेकर के वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन के साथ में रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो, जिससे कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आप अक्षित ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सर वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी सेम ही तो होगी। अब आपको पता लग गया क्यों सेम नहीं होगी, ये रिलेशन के कारण सेम नहीं हो सकती। तो ये मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में आया? यस सर। सर ये लेंथ तो कांस्टेंट थी, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। हाँ, ये रहा ना, लेफ्ट साइड में टोटल लेंथ थी और आपको पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो dl बाई dt कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है। यस सर। लेकिन वाई बी और वाई ए कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक बी जब ऊपर को चढ़ेगा तो वाई बी चेंज हो रहा है, जब ये ब्लॉक नीचे उतरेगा तो वाई ए चेंज हो रहा है। समझ रहे हो ना?
तो यस सर, इसलिए ये भी इन दोनों का तो डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी बन जाएगी वीबी और वीए, और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सब का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक अभी मैंने सिखाई है ये आपको वेलोसिटी का रिलेशनशिप दे देगी। अब उसी तरीके से इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वन मोर टाइम विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में तो जीरो ही रहेगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a। और ये भी वही रिलेशनशिप देगी कि एक्सेलरेशन ऑफ b का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a। क्लियर हुआ? यस सर। और ये रिलेशनशिप अब अपन आगे यूज करेंगे। अब देखो आपके पास में एक बहुत अच्छा टेक्निक आ गया, वी बी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। -2VA। एक सेकंड, वी ए ए तो अपन ने ये लिया है, सर क्या हुआ? ओ सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया अपन ने। क्या सर? वाई बी इसमें एक मिस्टेक कर दी, इसका करेक्शन मैं बताता हूँ कैसे, ये कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। भाई ये जो ए है अपन ने इसको इसके साथ ही मान लिया, ये अपन अज्यूम नहीं कर सकते। लेट मी मेक अ स्मॉल चेंज। अपन ने इसको उल्टा कर दिया है गलती से, बताता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। ये उल्टा रिलेशन आएगा, एक बार फिगर में, भाई आपको जनरल फिगर बना करके करना पड़ेगा, आप ये एजम्पशन नहीं ले सकते कि ये दोनों एक ही लेवल पर है। इस तरह की मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। वापस से बनाता हूँ ये फिगर, राइट। एक जनरल सिचुएशन लेनी पड़ेगी आपको। ऐसी सिचुएशन, अब देखो इसमें कांस्टेंट्स को आप सीधे एलिमिनेट कर लेते हैं। अब आप यहां से लेने की बजाय आपको सीधे इसको डेटम मान लो लेंथ लेने के लिए, ठीक है। ये देखो, ये जो सेंटर है पुल्ले का ये भी तो कांस्टेंट ही है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो इस वाले सेंटर पे डेटम ले लो, और इसके ऊपर की ये जो कांस्टेंट लेंथ्स ऑफ रोप्स हैं इन सबको एलिमिनेट कर दो, इसको कंसिडर ही मत करो। उसी तरीके से ये डिस्क के नीचे की और ये डिस्क के ऊपर की जो लेंथ होती है इन सबको आप एलिमिनेट कर दो, इग्नोर इट। टोटल लेंथ ऑफ रोप को अब बना के बताओ मुझको। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। और ब्लॉक बी का जो सेंटर है उससे डेटम लाइन की डिस्टेंस को मानो वाई बी, और ब्लॉक ए के सेंटर से जो डेटम लाइन की डिस्टेंस है उसको मानो वाई ए। अब वापस से मेरे को टोटल लेंथ ऑफ रोप बताओ आप, एनीबॉडी प्लीज गिव मी द टोटल लेंथ। सर YB प्लस ट्वाइस ऑफ YA। नहीं, ध्यान से देख के बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस वाई बी है तो ये डिस्टेंस कितनी है? YB। ये भी तो वाई बी है ना, और यस ये सर। डिस्टेंस है वाई वाई ए। अब बताओ टोटल लेंथ कितनी ट्वाइस ऑफ YB प्लस YA।
ट्वाइस ऑफ वाई टी प्लस वाई। अपन ने पिछली बार क्या गलती करी थी, अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो यूज करा था डेटम, उस डेटम लाइन पे बी और ए को कांस्टेंट ए की लाइन पे ले लिया था। लेकिन ऐसे आप नहीं कर सकते, लेंथ ऑफ रोप के लिए आपको एक जनरल सी एक पोजीशन बनानी पड़ेगी जिसमें कि एक ही लेवल पे सेम नहीं आए तो, ठीक है। तो अपन ने एक जनरल पोजीशन से लेंथ ऑफ रोप की ये एक्सप्रेशन निकाली, एंड नाउ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ डी प्लस वेलोसिटी ऑफ, और उससे ये पता लगा कि वेलोसिटी ऑफ v का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ a का। अब ये सेंस भी बनता है ना कि भाई जितनी तेजी से ए ब्लॉक नीचे जाएगा उसकी आधी रफ्तार से ही ये डिस्क ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ये डिस्क रोल होते होते ऊपर जा रहा है। और वो उसका वो रीजन भी तो बताया था ना आपको कि भाई आप जितना धागा यहां से खींचते हो उसकी आधी डिस्टेंस ही ये ऊपर चढ़ता है। तो ये लॉजिकल भी हो गया कि इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड की डबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। तो अब अपने पास ये रिलेशनशिप आ गया, एंड इफ यू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम देन यू गेट अनदर रिलेशनशिप is 0 equal to twice of acceleration of v plus acceleration of a, or you can say that acceleration of v has a magnitude only half of acceleration of a, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप अपने पास आ गई। ये रिलेशनशिप आपको वर्क करके आपके आंसर कॉपी में दिखाना भी है। आपको सीधे नहीं बोल देना कि एक्सेलरेशन ऑफ v इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a। तो इतना सा ही वर्कआउट है, बस ये देखो। आप ये मत, ये आप अभी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो तो इसलिए आपको लग रहा है कि यार अब इतना पूरा 1 घंटे का लेक्चर अपना कंज्यूम हो गया, लेकिन आप देखो इस फिगर को बना करके सिर्फ इतना सा वर्किंग दिखाना है आपको, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ बात नहीं करनी। अब अपन सर वापस आते हैं। हाँ, रिलेशन हमसे नहीं लिख सकता पर मतलब क्या बोल रहे हो? बिना ये डिराइव करे अपन रिलेशनशिप नहीं लिख सकते, मतलब इसका। अगर आपको याद है और आपके पास टाइम कम है तो आप कर लो, ये मैं सजेस्ट करूंगा। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ये एक बार दिखा देना सही रहेगा, ठीक है। यस सर। तो अब अपने पास ये रिलेशनशिप आ चुकी है, तो अब अपन वापस यहाँ चलें। यहाँ पर आए थे अपन, ये अपनी इक्वेशन थी। अब इसमें अपन को क्या करना है, बी बी को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करूं मैं बी को? हाउ शुड आई रिप्लेस बी? बी इज ba/2। एक अननोन पैरामीटर गायब हो जाएगा ना, ठीक है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया ना समझ में। अब ये बताओ, ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द ओमेगा ऑफ रोटेशन ऑफ द डिस्क, ठीक है। अब इसके लिए भी एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। v/r। यस, वेरी गुड। ये देखो, सेंटर ऑफ द डिस्क वेलोसिटी ऑफ बी की रफ्तार से ऊपर चढ़ रहा है ना। बी है ना इसका नाम, तो डिस्क इज बी, है ना। और रोल हो रहा है ओमेगा की वेलोसिटी से, और इसका रेडियस आपने टेम्पोररीली अभी आर मान लिया है। तो इस लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क और रोटेशन ओमेगा के बीच में क्या रिलेशनशिप है? Vb इज इक्वल टू आर ओमेगा, सही है ना। तो ओमेगा क्या हो गया? Vb अपॉन आर। और अब Vb को भी रिप्लेस कर दो किससे? Va/2 से। क्लियर हुआ? तो ओमेगा आपका रिप्लेस हो गया है Va अपॉन 2r से। तो यहाँ पर क्या आएगा? v/2r का होल स्क्वायर। ये v/2r का होल स्क्वायर। सही है। यस सर। अब आपने ये देखो इंटेलिजेंटली सारे चीजों को रिप्लेस कर दिया है। Vb को हटा दिया, ओमेगा को हटा दिया, I को हटा दिया। अब इन सारे रिप्लेसमेंट्स जो अपन ने किए, इन सबको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल इक्वेशन में
डाल के देखते हैं क्या बनता है। लेफ्ट साइड इज एम जी वाई बाई टू इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर की जगह पे बी ए स्क्वायर बाई फोर लिख देते स्क्वायर बाय 4. हैं, ठीक है, प्लस हाफ आई की जगह लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ बी ए स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, और आप अगर इस पूरे इक्वेशन में देखें एम भी कैंसिल हो जाएगी, तीन टर्म है, तीनों टर्म से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे चले, दिस इज जी वाई बाई टू इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी ए स्क्वायर बाई एट प्लस बी ए स्क्वायर बाई 16, सही है क्या? यस सर. और सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल करें टू को, अब जल्दी से जरा वर्कआउट करके बता दो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वी ए एंड वाई, वी ए इक्वल टू, बताओ। सर 8GY/11. यस, अंडर रूट ऑफ, Yes sir, under root of 8GY/11. दिस इज योर आंसर, क्लियर हो गया? Yes sir. अब देखो पहला वाला पार्ट आपने आंसर कर दिया है, एक्सप्रेस वेलोसिटी ऑफ ए एज अ फंक्शन ऑफ वाई while using only these parameters, और ये देखो आपने कर दिया है, आपने सिर्फ g और y को यूज किया है, m की भी जरूरत नहीं पड़ी, अंडर रूट ऑफ 8GY/11, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टेंशंस इन द स्ट्रिंग। अब देखो ये एक बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट किताबों में कहीं पे भी नहीं दे रखा होता। इससे पहले आपने जितने भी पुल्ली के प्रॉब्लम सॉल्व किए उन सब में आपने हमेशा हर जगह, यू टेक एनी बुक, लिटरली एनी बुक, एनी लिटरेचर, एनी इंटरनेट रिसोर्स, आप कभी भी पुल्ली की प्रॉब्लम्स देखते हैं, खूब सारी पुल्लीज लगा दो एंड पुल द स्ट्रिंग विद अ टेंशन टी। तो अब मेरे को ये बताओ इन सारे पार्ट्स में कितनी टेंशन होगी? यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, खूब सारे पुलिस में से आपने धागे को पास कराया और धागे को खींच के पकड़ा है टी टेंशन से। मेरे को ये बताओ इधर कितनी टेंशन होगी, इधर कितनी होगी, इधर कितनी होगी, इधर कितनी होगी? क्या सभी जगह पे टेंशन सेम नहीं होगा? Yes sir, सेम ही होगी. सेम ही होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इस लॉजिक को देखते हुए देयर वुड बी अ वेरी गुड टेम्पटेशन to consider the tension in all parts of the string also as T। बोलोगे कि भाई ये धागा इधर से गया, ऊपर से आया, इधर से गया, इधर से, एक ही धागा है ना, और हमेशा सारे टेक्स्ट बुक्स में ये बताया जाता है कि अगर धागा एक है, नो मैटर थ्रू हाउ मेनी डिस्क्स इट इज पासिंग, द टेंशन विल बी कांस्टेंट T, उसमें एक ही टेंशन होगी। तो मैं इसको T T और T लेने के लिए आई एम हाईली टेम्पटेड, but to the disappointment of us all, this is not the case। यहाँ पर एक टेंशन आएगी T, यहाँ पर वही टेंशन होगी, और यहाँ पर टेंशन अलग। अब इसका रीजन क्या है?
ये रीजन है जो किताबें एक्सप्लेन नहीं करती. द रीजन फॉर अ डिफरेंट टेंशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज when general pulleys are considered like this. इस तरह की पुलिस जब आप कंसिडर करते हो तो इसमें हमेशा एक अंडरलाइंग फैक्टर होता है कि द पुलिस आर मासलेस. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस पुल्ली के ऊपर से एक धागा बांधू और इधर भी टी टेंशन से खींचू और इधर भी टी टेंशन से खींचू, तो ये पुल्ली रोटेट करेगी क्या? नो सर. करेगी नहीं. रोटेशन करने के लिए आपको एक नेट टॉर्क तो लगाना पड़ेगा ना. भाई ये टेंशन आर रेडियस पे कितना टॉर्क लगा रही है, टी इंटू आर. और ये टेंशन आर रेडियस पे कितना टॉर्क लगा रही है, उल्टा, ये भी टी इंटू आर. तो दो टॉर्क हो गई, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही टी इंटू आर है, तो इसमें रोटेशन ही नहीं होगा. देयर इज नो रोटेशन इन द केस. अब देखो, डिस्क का मास आपने m ले लिया है. अब आप यहां पर तो रखो T1 और यहां पे रखो T2 एंड लेट अस से T2 इज ग्रेटर देन T1. तो क्या होगा, ये डिस्क इधर को घूमना स्टार्ट हो जाएगी. अब घूमेगी डिस्क, तो आप ये कहोगे दैट द टॉर्क ऑन द डिस्क इज इक्वल टू T2 minus T1 into R. ठीक है, एंड द नेट टॉर्क कैन बी गिवन एज I into alpha and I of the disk is R mr square. अब सही है ना? न्यूटन का Yes. सिद्धांत लगा करके मैं कह रहा हूं मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट टॉर्क. ठीक है, अब मैंने ये कहा कि मैं T1 और T2 की टेंशन का डिफरेंस क्रिएट करने के कारण मैं मास को रोटेट कर पाया. अब आपको किसी ने एक प्रॉब्लम बना करके दी और कहा कि दिस पुली इज मासलेस. ठीक है, तो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मास कितना है, 0. अब वापस से वही प्रिंसिपल आएगा, रोटेशन करने के लिए T1 और T2 अलग अलग टेंशन चाहिए भाई. सेम टेंशन दोगे तो मास रोटेट नहीं करेगी. तो आपने चालू तो किया इस कॉन्सेप्ट से कि लेट अस क्रिएट अ डिफरेंस इन टेंशन सच दैट T2 is greater than T1. So now there will be rotation. What is the torque? Once again, it is T2 minus T1 into R. And therefore, it is equal to I into alpha. And I is equal to half mr square. But m is equal to 0. So right hand side क्या हो गया? Torque is equal to 0. T2 minus T1 into R equal to 0. अब रेडियस तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है T2 इज इक्वल टू T1. तो जब अपन इस तरह की प्रॉब्लम्स में, ये देखो, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपने खूब सारे पुलिस के ऊपर से अगर धागा पास कर रखा है तो सब जगह पे टेंशन सेम अपन कब लेते हैं, when all the disks are massless. तो जहां पर आपने डिस्क को मासलेस लिया है सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर ही सारे धागे में टेंशन टी रहती है. लेकिन आपकी प्रॉब्लम में डिस्क के ऊपर मास है, तो इसीलिए यहां पर और यहां पर टेंशन सेम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पे जब टॉर्क आएगा तो मास लेस होने की बजाय मास के साथ है ये. इसीलिए यहाँ पर देखो ये एम आर स्क्वायर में m इज नॉट इक्वल टू 0. तो I अल्फा सम क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी विल बी डिलीवर्ड टू यू. तो अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूमेरिकल क्वांटिटी आती है तो T2 माइनस T1 मेंटेन रहेगा, T2 इक्वल टू T1 नहीं होगा. क्लियर हो गया? तो इस एक छोटे से डेरिवेशन से मैंने आपको ये समझा दिया. ये आपके एग्जाम में नहीं लिखना है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है. आपको स्टार्ट कैसे करना है ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टेंशंस इन स्ट्रिंग.
सीधे ये फिगर बनाना है। कैसे बनाओगे फिगर? अब देखो, ये जो छोटा वाला पुल्ली है, इस पे मास है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं। छोटे पुल्ली पे मास नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई टेंशन टी ए लिख देता हूँ, क्योंकि ये ए ब्लॉक के पास का टेंशन है, तो इसको टी ए लिख देता हूँ। तो यहाँ कितना टेंशन होगा? सर टी यही होगा। यहाँ पर टी ही होगा, क्योंकि इस वाले ब्लॉक का, सॉरी, इस वाले सर्कल का मास नहीं है, तो ये तो टी ही होगा। लेकिन अब ये जो पुल्ली है, इस पे मास है, तो इधर टी ए लिया है, तो इधर कुछ और लेना, लेटर से टी। अब आप इसको टी ए लिख लो, या फिर T1 T2 लिख लो, ये आपकी इच्छा है। If you do not like A suffix and B suffix, you simply write as T1 T1 and write it as। अब आपको समझ में आ गया इसका लॉजिक क्या है, कि इसको मास वाले डिस्क के दोनों साइड पे टेंशन का डिफरेंस होता है, और मास लेस वाली साइड पे टेंशन का डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, अब इसको याद रख लो, और सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करोगे तो सीधे इस फिगर के साथ स्टार्ट कर दो। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड, you don't even have to write कि since the disk has mass m, therefore I am taking the two different tensions. No, you don't have to write it. You simply draw this figure and show it. That's all. ठीक है, क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट आपका? यस सर। तो अपन आज अपनी क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट ईयर्स क्वेश्चन। Just stay with me. I will take your attendance.